اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں ٹرین میں ہوں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں بھی ہو ہم آپ تک خبریں ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ٹرین کی آواز بھی آ سکتی ہے، اس لیے تھوڑا سا معذرت اور معاف کر دینا، لیکن ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے آپ تک خبروں کو پہنچائیں۔ اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دلی کے رام لیلا میدان میں حضرت مولانا ارشد مدنی نے تمام دھرم گروؤں کے سامنے ایک آدم کی اولاد ہونے کی بات کہی تھی، اور کہا تھا کہ ایک آدم کو اگر ہم سب مانتے ہیں تو آدم ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ کفر میں زلزلہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو ماحول بنا تھا وہ بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا، لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ ایک سوامی ہے یشویر مہاراج نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں دارالعلوم دیوبند جاؤں گا حضرت مولانا ارشد مدنی سے مناظرے کے لیے۔ جی ہاں، مولانا ارشد مدنی کے بیان سے ناراض چاروں وید لے کر جاؤں گا اور ان سے مناظرہ کروں گا۔ تو خیر، یہ سوامی جی ماحول خراب کرنے کے لیے نکل بھی پڑے، مگر سوامی کو روک دیا گیا، اور خبریں ہیں کہ مظفر نگر سے آگے سوامی کو بڑھنے نہیں دیا گیا۔ پولیس سے نوک جھونک بھی ہوئی، کیونکہ سوامی سینکڑوں لوگوں کے ساتھ، اپنے سمرتھکوں کے ساتھ نکلے تھے۔ جب پولیس سے نوک جھونک ہوئی اور روک دیا گیا تو وہاں پر احتجاجاً یعنی آندولن کرتے ہوئے وہاں پر ہنومان چالیسا کا پاٹھ کیا گیا۔ وہیں پر دیوبند میں انتظامیہ پوری طریقے سے الرٹ رہی، مسجد رشید اور جگہ جگہ پولیس تعینات کر دی گئی۔ یعنی یشویر مہاراج جو وہاں دارالعلوم دیوبند پہنچنے والے تھے اور شرارتاً پورے ماحول کو خراب کرنے والے تھے یا نفرتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، پولیس نے انہیں روک دیا۔ ناظرین، اس وقت دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ منیش سسودیا اور ستیندر جین کے استعفے منظور کر لیے گئے۔ نائب وزیر اعلیٰ کو سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملی، ہائی کورٹ جانے کا حکم دے دیا گیا۔ دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو راحت دینے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے۔ اس وقت آپ لیڈر سسودیا سی بی آئی کی حراست میں ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کچھ راتیں حراست میں ہی گزار
उतारनी होंगी। आबकारी मामले में जेर हिरासत सिसोदिया ने जमानत के लिए 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, ऐसी तीसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार के हर दिल अजीज शहीद लीडर लालू प्रसाद यादव, जी हाँ, खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव फिर जेल जा सकते हैं। जमीन की खरीदारी, रेलवे भर्ती समेत 7 मामलों में उनकी बीवी राबड़ी देवी और बेटी मेसा को भी नोटिस जारी किया गया। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी 2008 का जो मामला है, इस मामले में फिर राबड़ी देवी और उनकी बेटी को नोटिस जारी कर दिया गया है और खबरें गर्दिश कर रही है कि लालू प्रसाद फिर जेल जा सकते हैं। पटना के किशन देव राय ने अपनी 3,375 मुरब्बा फीट जमीन सिर्फ 3,75,000 रुपए में साबिक वजीर आला बिहार लालू प्रसाद यादव की अहलिया राबड़ी देवी को बेच दी। ये जमीन की काफी कम कीमत थी और ऐसे ही कई मामलों को लेकर फिर बाकायदा लालू प्रसाद को लेकर खबर आ रही है कि उन्हें फिर जेल रवाना किया जा सकता है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रियासत तेलंगाना से। जी हाँ, रियासत तेलंगाना में भी शर पसंदों ने एक मुस्लिम नौजवान को बड़ी बुरी तरीके से मारा पीटा और उसे जय श्री राम का नारा लगाने पर भी मजबूर किया। नारायणपेट जिला उटकूर मंडल मुस्तकर के मोहल्ला गुदवाल कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद मुजाहिद वल्द अब्दुल रहमान उम्र 19 साल, जो तामीर नौ का काम करता है और मजदूरी का काम करता है, फिटिंग का काम करता है। 27 फरवरी की रात 9 से 10 बजे के दौरान जब वो नारायणपेट से अपना काम खत्म करके बाइक पर अपने घर लौट रहा था कि आतंकवादियों ने बीच में रोका और उसे बुरी तरीके से मारा पीटा और उसे नारा लगाने पर भी मजबूर किया। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है राजा सिंह को लेकर। आप जानते हैं राजा सिंह नाम का एक खबीस, एक मरदूद, एक शैतान शख्स जो यूँ समझिए कि अपनी विवादित भाषा और अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहता है और मुल्क में अजमल कसाब की तरह आतंकवाद फैलाता रहता है और हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाता रहता है। मलऊन राजा सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र के लातूर में भी मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी का मुअत्तल सस्पेंड एमएलए राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने लातूर शहर में मुकदमा दर्ज किया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश के मौके पर एक प्रोग्राम में इसने इश्तिहाल अंगेज खिताब किया और नफरतें फैलाने की पूरी कोशिश की। इसी को लेकर बाकायदा राजा सिंह पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, मैं खबरें पढ़ते पढ़ते हैरान रहता हूँ कि फिर इन आतंकवादियों को जो खुलेआम नफरतें फैला रहे हैं और जगह जगह इन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो फिर इन्हें किसी प्रोग्राम में शरीक होने की इजाज़त कैसे दी जाती है और उस प्रोग्राम की इजाज़त कैसे दी जाती है? ऐसे आतंकवादियों को जो मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला रहे हैं, इन्हें किसी भी तरीके से रोक कर जेल की सलाखों में ठूंसना फ़र्ज है या फांसी के फंदों पर लटकाना फ़र्ज है, ताकि मुल्क, इस प्यारे मुल्क को बचाया जा सके। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि BSF के 2 जवानों को एक नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी गैंगरेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोलकाता में हावड़ा की एक अदालत ने नाबालिग की इज्तिमाई इस्मत दरी के मामले में एक फौजी अफसर और BSF के 2 जवानों को सजा सुनाई है। ये वाकया 8 साल पहले का है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुल्जिमान को पॉक्सो एक्ट के तहत कसूरवार पाया गया। हावड़ा अदालत के जज
भट्टाचार्य ने गवाहों की और सबूतों की बुनियाद पर पीर को कसूरवारों के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। इसके अलावा एक और फौजी एहलकार को मुजरिम करार देकर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। इन दोनों मुकदमात में जुर्माना अदा न करने पर जज ने बितरतीब 2 और 1 साल कैद बामशक्कत का हुक्म भी दिया है। इस वाक़े को 27 दिसंबर 2015 को अंजाम दिया गया था। एक 13 साल की लड़की के साथ बीएसएफ के जवानों और फौजी अफसर ने गैंगरेप किया था। नाज़रीन, इस वक्त रियासत गुजरात से एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, आप जानते हैं कि एहसान जाफरी नाम के एक कांग्रेस के कद आवर नेता थे, जिन्हें 2002 के गुजरात फसादात में आतंकवादियों ने जिंदा जला दिया था और इनकी पूरी सोसाइटी को आग लगा दिया था। मगर आप जानते हैं कि तमाम के तमाम गुजरात फसादात के आतंकवादी पूरी तरीके से आज़ाद हैं। खैर, एहसान जाफरी जिन्हें जिंदा जलाया गया था, गुज़िश्ता कल उनकी 21वीं बरसी थी। उनकी 21वीं बरसी पर उनकी बीवी ज़किया जाफरी ने उन्हें याद किया और गुजरात फसादात 2002 के दर्दनाक वाक़े को याद किया। आप जानते हैं कि गुलबर्ग सोसाइटी में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे एहसान जाफरी, लेकिन 28 फरवरी 2002 को भगवा आतंकवादियों के हुजूम ने उनके घर पर हमला किया और आसपास के सभी लोग उनके बंगले पर आ गए थे, मगर पूरी सोसाइटी को आग लगा दी गई। मगर आप ये भी समझ सकते हैं कि एहसान जाफरी और भी कई लोगों के जितने कातिल है वो अब पूरी तरीके से यूँ समझिए कि आज़ाद हैं। नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर रंजनगांव के इलाके से हमारे रिपोर्टर मौलाना तैयब ने बताया है कि रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का जो नाम तब्दील करने का आदेश आया है सरकार की जानिब से, इसको लेकर बाकायदा मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने कानूनी और अवामी एहतजाज का फैसला किया है। सभी सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल को भरपूर तायद हासिल हुई है। मैं आपको बताऊं कि सरकार की जानिब से औरंगाबाद शहर का जो खूबसूरत नाम है इसको बदलने का ऐलान किया गया है। तो अब मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल कानूनी और अवामी एहतजाज करने का प्रोग्राम बना रही है और तमामी सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों ने इनका समर्थन कर दिया है। वहीं पर औरंगाबाद से मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा है कि बीजेपी को बिहार में औरंगाबाद नाम, बिहार में भी एक शहर का नाम औरंगाबाद है, तो बीजेपी को बिहार में औरंगाबाद नाम चल रहा है मगर महाराष्ट्र में नहीं। यानी आप समझ सकते हैं कि अब महाराष्ट्र का माहौल पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र में बाकायदा ऐसी ही भगवा आतंकी जहन रखने वालों ने नवी मुंबई में माहौल खराब किया और मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए और एक जन आक्रोश रैली में बाकायदा बीजेपी के नेता भी शामिल हुए हैं, क्योंकि 2024 की बीजेपी पूरी तैयारी में लग गई है और बीजेपी की तैयारी मतलब माहौल खराब। नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर आ रही है कि असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर तमाम अपोजिशन पार्टियों ने प्याज और कपास का हार पहनकर आंदोलन किया। अब हुकूमत की तवज्जो प्याज की गिरती हुई कीमत की तरफ मबजूल कराने की कोशिश की। आप जानते हैं कि प्याज गिरकर 2 रुपये किलो पर पहुंच गया है, यानी किसान तो आत्महत्या पर मजबूर हो गए हैं और बीजेपी सरकार जो किसानों की दुश्मन सरकार मानी जाती है वो प्याज की और कपास की गिरती हुई कीमतों पर तवज्जो नहीं दे रही है। यानी किसानों और शेतकरियों की तरफ बीजेपी की कोई तवज्जो नहीं है, बस इलेक्शन कैसे जीता जाए इस पर पूरी तवज्जो है और मुंबई में कैसे माहौल महाराष्ट्र में भी खराब किया जाए इसी पर तवज्जो है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुंबई की खबर आ रही है। जी हाँ, एक शख्स ने अंबानी
मुकेश अंबानी, ऐसे ही बॉलीवुड फेमस अदाकार अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बंगलों के बाहर बम नस्ब करने की धमकी दी है। मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। जी हाँ, फोन करके बाकायदा उसने धमकी दी है। नागपुर पुलिस ने मुंबई पुलिस को एक धमकी आमेज फोन के बारे में मुत्तला कर दिया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है और उसने बम स्क्वाड को मुतहर्रिक कर दिया है। एक नामालूम शख्स ने गुज़िश्ता कल नागपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके दावा किया कि बिजनेस टाइकॉन मुकेश अंबानी की रिहाइशगाह एंटेलिया, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का बंगला और तजुर्बेकार अदाकार धर्मेंद्र की रिहाइशगाह के करीब बम नस्ब किए गए हैं। और उसने ये भी दावा किया कि 25 लोग दहशतगर्दाना हमला करने के लिए हथियारों से लेस मुंबई के दादर पहुंच गए हैं। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।